Very good morning children. Welcome to the psychology classroom. I hope आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी स्टडीज को कंटिन्यूसली बनाए रखा है आपने और ऑन अ रेगुलर बेसिस आप वीडियोस देख रहे हो एंड फॉलोइंग माय इंस्ट्रक्शन वेरी प्रॉपरली. Children, we are studying the chapter social influence in group processor. In that, children, many topics we have discussed. बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली and mostly we are on the end of this chapter. So the last topic which I am going to discuss with you today is intergroup conflict. This whole chapter we have studied about the group and so many things we have discussed about the group. Group क्या होता है, how the groups are formed, why do people join group, the influence, the social influence of group on individual behavior, individual behavior पे group का क्या influence पड़ता है, social influence क्या होता है ये भी हमने पढ़ा. We read about the conformity, compliance and obedience. Cooperation and competition is a very important part of the group. We learn about the cooperative goal, we learn about the competitive goal. Now today we are going to study about intergroup conflict. अब हम लोग आज पढ़ेंगे. Our topic of today is intergroup conflict. Children, you know first of all the basic difference between intergroup and intragroup. I think you all know about the difference between intragroup and inter. Intra means होता है within. It is means within and inter means outside. Or if we are talking about intragroup conflict, it means there is a conflict within the group. Group के अंदर हो रही है. And intergroup conflict में we are talking about the conflict between the two groups. दो लोगों के बीच में होना, दो groups के बीच में होने में जो and conflict you know about the issues. Okay, that is a conflict. तो conflict जो है here we are discussing about the intergroup. See, हम लोग जब group में होते हैं तो obviously conflicts भी होते हैं और conflicts जो है सिर्फ इंट्रा ग्रुप नहीं होते, इंटर ग्रुप में भी होते हैं. जैसे टू फैमिलीज हैं, देयर विल बी इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. टू स्कूल्स, ओके, फैमिली में भी देखते हैं कि नेबर्स में ये क्या है, नेबर्स से जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो क्या है, इट इज एन इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. यही तो है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, दो ग्रुप, वो भी फैमिली है, आपकी भी एक फैमिली है, दो फैमिली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. और क्या है, और जैसे टू कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है. ठीक है, टू नेशंस, टू कंट्रीज, टू सिटीज, टू कास्ट, टू रिलीजन्स. ओके, दे आर ऑल्सो, रिलीजन इज ऑल्सो अ ग्रुप, इट इज अ सोशल ग्रुप. सो इफ देयर इज अ conflict between the two group, so it is known as intergroup conflict. See, conflict is a process in which either an individual or a group perceive that other have opposing interest and both try to contradict each other. This is the intense feeling of we and other, also referred to as they. There is also belief by both parties that the other will protect only its own interest. There is not only opposition of each other, but they also try to exert power on each other. See, intergroup conflict में क्या हो रहा है? Obviously, intergroup conflict क्यों होता है? क्योंकि there is a feeling of we. अपनी ग्रुप के लिए तो हम लोग we feeling रखते हैं और अदर ग्रुप के लिए हम लोग they feeling रखते हैं. जैसे अपनी फैमिली, एक तरह से अपनी फैमिली को तो हर एक चीज समझ रहे हैं. नेबर से क्यों क्वारल हो रहा है? जो नेबर है उनको हम दे समझ रहे हैं. ओके, दे, अगर उन्हें भी वी समझे, इफ देयर इज अ फीलिंग ऑफ वी, देन देयर इज अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, एंड व्हेन देयर इज अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, सो कॉन्फ्लिक्ट विल नॉट अराउज.
ओके, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। तो इंटरेस्ट अलग होते हैं, परसेप्शंस अलग होते हैं, एंड इन सारे बेसिस पे कॉन्ट्राडिक्शंस होता है। और ना ही अभी मैंने बताया अभी कि नॉट ओनली वी अपोज ईच अदर बट वी ऑल्सो एक्सर्ट अवर पावर। हम लोग ना ही सिर्फ अपोज भी करते हैं बट हम उनके ऊपर अपना पावर भी एक्सर्ट करना चाहते हैं, एक पावर भी शो करना चाहते हैं। तो विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। ग्रुप हैव बीन फाउंड टू बी मोर एग्रेसिव देन इंडिविजुअल। ऑब्वियसली जब एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो थोड़े ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि कई सारे लोग हो जाते हैं। सो दिस ऑफन लीड टू escalation ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। All conflicts are costly as there is a human price for them. In wars, there are both victories and defeats. But the human cost of war is far beyond all this. Various types of conflict are commonly seen in society which turn out to be costly for both sides as well as for the society. So now children, you will understand about the intergroup conflict. Now we will have to study about the reasons. What are the reasons of the intergroup conflict? So one by one point we will discuss. Reason क्या है, क्यों होता है intergroup conflict? So the first reason is found to be lack of communication. See, not only intergroup conflict, any kind of conflict, the reason is lack of communication. I am not talking about only on the group basis, also as well as on the individual basis. ना ही सिर्फ ग्रुप बेसिस पे ही। सो चिल्ड्रन, you understand what I am trying to say, that lack of communication is not only the reason for the intergroup। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए lack of communication है। आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होंगी and that would not going to be clear. So it is very important to have a connectedness with the person, and to have a communication, to have an interaction. Only this is the best solution for not to be arise any kind of conflict। जहाँ आपने communication gap किया, obviously it will lead to the misunderstanding। Okay, चलिए, तो सबसे पहला रीजन हमने क्या जाना इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लैक ऑफ कम्युनिकेशन और interaction, lack of communication or interaction is one of the reason of intergroup conflict। One major reason is lack of communication and faulty communication by both parties। This kind of communication lead to suspicious, that is there is a lack of trust। लैक ऑफ कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, जिसकी वजह से इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन। सेकेंड रीजन इज रिलेटिव डेप्रिवेशन। सेकेंड रीजन ऑफ इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट इज रिलेटिव डेप्रिवेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन? It arises when a member of a group compare themselves with the member of another group and perceive that they do not have what they desire to have, which the other group has. So now relative deprivation is basically related to the making comparison। जब हम comparison करते हैं, कई बार करते हैं comparison, हम लोग हमेशा करते हैं comparison of the resources। Comparison of the resources include money, support, information। तो comparison of the resources most of the time होता है। जैसे हमें ये लगता है कि हमारे पास sorry, the second group is having each and everything, I am not having it। जब हमें ये लगता है कि जो सेकेंड ग्रुप है उसको सारी चीजें मिल रही हैं, आपको नहीं मिल रही हैं, ठीक है। In other words, they feel that they are not doing well in comparison to other group। This may lead to feeling of deprivation and discontentment, which may trigger of conflict। ठीक है, तो relative deprivation। Now, what is the
third reason. What is the third reason of intergroup conflict? I hope children you understand about the relative deprivation. जब हम कंपैरिजन करते हैं, हमें लगता है उनको ज़्यादा मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है, ऐसा कुछ हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो this give rise to the escalation to the conflict. Okay, lack of communication and interaction also reason. Relative deprivation is a reason. Now third is the reason is the belief that it is better than other. One party believe that it is better than other. हमें मतलब हर पार्टी मीन्स हर एक ग्रुप ये सोचती है कि वो ज़्यादा बेटर है. इट्स समटाइम कॉल्ड हाई सेल्फ एस्टीम. सो सेल्फ एस्टीम होना अच्छी बात है, बट बहुत वेरी हाई सेल्फ एस्टीम होना कहीं ना कहीं सही नहीं होता. तो ये भी एक रीजन होता है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. ग्रुप परसीव themselves more better than other group. Group perceive themselves more better than other group. ठीक है. One party believe that it is better than the other and what it is saying should be done. उनको ये भी है कि हमने जो कहा वो होना चाहिए. When this does not happen, both parties start accusing each other. One may often witness a tendency to magnify even smaller differences and thereby conflict get escalated because every member want to respect the norms of his or her group. Yeah. एक तो हर एक मेंबर अपने आप को ज्यादा बेटर समझता है, एक ये रीजन. सेकेंड, आई एम रबिंग द बोर्ड दैट दीज 2 पॉइंट बिकॉज दीज 2 पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड प्रॉपर्ली. फोर्थ रीजन क्या है? हर एक ग्रुप अपने ग्रुप के नॉर्म्स को रेस्पेक्ट द नॉर्म ऑफ वंस ओन ग्रुप. अपने ग्रुप के नॉर्म को तो रेस्पेक्ट करते हैं, पर हम दूसरे ग्रुप के नॉर्म को रेस्पेक्ट नहीं करते. क्यों ऐसा? आपने जो नियम बनाए अपने ग्रुप के लिए, आपके नियम है और दूसरे के नियम नहीं है. तो ये भी एक रीजन है कि डिसरेस्पेक्ट द नॉर्म्स ऑफ वंस ओन ग्रुप ओनली एंड डिसरेस्पेक्ट अदर ग्रुप. दूसरे ग्रुप को डिसरेस्पेक्ट करना, उनके नॉर्म्स को डिसरेस्पेक्ट करना, ये भी एक रीजन है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का. द बिगेस्ट रीजन. आप अपने ग्रुप के नॉर्म्स को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, सेकेंड ग्रुप के नॉर्म्स को नहीं रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ये गलत बात है. ठीक है. देन मैग्नीफाइंग अ स्मॉल डिफरेंस. द फिफ्थ पॉइंट इज मैग्नीफाइंग अ स्मॉलर डिफरेंसेस. छोटी छोटी चीजों को भी बड़ा करना. जो चीजें हम इग्नोर कर सकते हैं, जिन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं, उनको भी हम बहुत बड़ा बना देते हैं. मैग्नीफाइंग द स्मॉलर डिफरेंसेस, वो भी नहीं करना चाहिए. तो चिल्ड्रन, आर यू गेटिंग कि क्यों इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन, रिलेटिव डेप्रिवेशन एंड बिलीफ दैट वी आर बेटर ओनली. फोर्थ, respecting the norms of one's own group and disrespecting the other group norms. Magnifying a smaller difference. So 5 points हमने आपसे डिस्कस कर लिए. आगे बढ़ते हैं. If you understand these 5 points, so आगे बढ़ते हैं. ठीक है. और भी रीजंस हैं. I am rubbing the board with the hope कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा. चलिए. What is the 6th point? A feeling that the other group does not respect the norms of my group and actually violate those norms because of a malevolent intent. ठीक है. Another reason of intergroup conflict, यानी 6th reason is the spelling should not be wrong. Malevolent intent. मतलब कि बहुत बेकार intention. Intent word is made from the intention and malevolent means
खराब सोच, आप दूसरे के ग्रुप के लिए बहुत ही डर्टी, मैलवॉलेंट, एक तरह से डर्टी इंटेंशंस रख रहे हैं, खराब सोच रख रहे हैं। आप अपने ग्रुप के लिए तो सब अच्छा सोच रहे हैं, बट सेकेंड ग्रुप के लिए आप ऐसा इंटेंशन रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डिजायर फॉर रिटेलिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सबसे बड़ा रीजन होता है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का, डिजायर फॉर रिटेलिएशन मतलब होना, अगर हिंदी में से बोले तो बदला लेना। उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी उसके साथ बुरा करूंगा और उससे ज्यादा बुरा करूंगा। तो दैट इज, ये जो शब्द बोले जाते हैं, इट इज नोन एज रिटेलिएशन। डिजायर फॉर रिटेलिएशन फॉर सम हार्म डन इन द पास्ट कुड बी अनदर रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट। मान लीजिए कभी कोई रीजन से, किस वजह से भी कभी कुछ हुआ होगा, उस ग्रुप ने ऐसा कुछ किया होगा आपके साथ, तो अब आप में एक फॉरगिवनेस की फीलिंग होनी चाहिए, ना कि डिजायर फॉर द रिटेलिएशन। ओके, दिस ऑल्सो इज वन ऑफ द रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट। नाउ biased perception, 8th point. Please note it down, children. Points will make you help to write down your notes. यही पॉइंट्स आपके नोट्स बनाने में आपकी मदद करेंगे। ये पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स ओनली हेल्प यू टू मेक योर नोट्स। बाइस्ड परसेप्शन, परसेप्शन बाइस्ड हो मतलब नजरिए, जो व्यू पॉइंट होते हैं नजरियों, सॉरी मिस्टेकन, सॉरी फॉर दैट वन, नजरिया यानी व्यू पॉइंट, लुकिंग द थिंग्स, उसमें कुछ बायस है। ठीक है, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। ठीक है, परसेप्शन बायस है, आर द रूट ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। एज ऑलरेडी मेंशन अर्लियर, फीलिंग ऑफ दे एंड वी लीड टू बायस परसेप्शन। बायस परसेप्शन जो है किस तरीके की फीलिंग को अराइज करता है, फीलिंग ऑफ वी एंड फीलिंग ऑफ दे। हम लोग की ग्रुप में है और वे लोग दे हैं। वे लोग मतलब आप उन्हें एक अदर कैटेगरी में रख रहे हैं। तो बाइस्ड परसेप्शन अपने लिए कुछ और, फॉर अस, हम लोग कुछ और नियम कानून बना रहे हैं, कुछ और रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं। फॉर द अदर ग्रुप वी आर मेकिंग सम अदर नॉर्म्स, सो दिस इज नॉट राइट। ओके, बाइस्ड परसेप्शन। नाउ next reason of the conflict is the, write down the point 9, perceived inequity. Just correct the spelling also. Okay, perceived inequity, it is also one of the reason of conflict. Perceived inequity, inequity is another reason. Equity refers to distribution of reward in proportion to an individual's contribution. Distribution of reward in proportion to an individual's contribution. मतलब रिवॉर्ड तो आप जो डिस्ट्रीब्यूट करो, तो कोई भी रिवॉर्ड आप दे रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूट करो तो प्रोपोर्शन में करो, इक्वालिटी में करो। कभी कभी जब हम इनइक्वालिटी करते हैं तो दैट इज लीडिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि ऑब्वियसली कभी कभी क्या होता है, जैसे आपके बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, योर रिवॉर्ड इज अपॉन योर कॉन्ट्रीब्यूशन, योर फ्रेंड रिवॉर्ड अपॉन योर फ्रेंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, but if you contribute more and get less, you are likely to feel irritated and exploited. Means आपने भी contribution किया है, आपके friend ने भी contribution किया है, तो reward में क्यों biasness है, reward में क्यों variation है, equal होना चाहिए। और वहीं जब हम लोग equality नहीं करते हैं, and that is leading to the, that is known as perceived inequity, यानी inequality हम कर रहे हैं, and that is the reason of the conflict. So these are some of the reasons of the intergroup conflict I had discussed with you. I hope you understand the reasons. What is intergroup conflict, क्या होता है और क्यों होता है, why it arises, what are the reasons. So you have learned that these are some of the reasons. Total 9 points I have discussed with you. Now आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद, साइकोलॉजिस्ट नेम इज ड्यूश. प्लीज नोट इट डाउन, ड्यूश, DEUTSCH. दिस इज द नेम ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट, ड्यूश. ड्यूश ने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बताए, इफेक्ट्स बताएं इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के. अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या हो, मतलब इसका इफेक्ट क्या आएगा, क्या परिणाम होता है. तो लेट अस स्टडी दैट वन ऑल्सो. ड्यूश ने कॉन्सिक्वेंसेस बताए. ही टॉक्स अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. consequences of intergroup conflict. इसमें सबसे पहला पॉइंट है, communication between the group become poor. The group do not trust each other, thereby leading to a breakdown in communication and this generates suspicion for each other. ठीक है. इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का की वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत पुअर हो जाती है. ग्रुप्स जो हैं ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे पे, दे ऑलवेज सस्पिशियस ईच अदर. तो सबसे पहला पुअर कम्युनिकेशन, बात नहीं करना चाहते हैं. कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से बात नहीं करना चाहता है, ट्रस्ट नहीं करता है. सेकेंड, दे स्टार्ट मैग्नीफाइंग देयर डिफरेंसेस. जो डिफरेंसेस है उसको और बड़ा करने लगते हैं. ठीक है, मिनिमाइज नहीं करते, मैग्नीफाइंग करते हैं, और बड़ा करने लगते हैं. मैग्नीफाइंग द डिफरेंसेस, इंस्टेड ऑफ उसको सॉल्व करना, वो उसको और ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं. एंड स्टार्ट परसीविंग देयर बिहेवियर एज फेयर एंड अदर बिहेवियर एज अनफेयर. परसीविंग, परसेप्शन भी चेंज होता है. परसीविंग ओन बिहेवियर, अपने बिहेवियर को सही मानते हैं. ये सबके साथ है. जहां भी आप देखोगे कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को फेयर मानते हैं, परसीविंग ओन बिहेवियर एज फेयर एंड अदर अनफेयर. उनको लगता है वो जो कर रहे हैं वो सही है, पर जो दूसरा कर रहा है वो क्या है, वो गलत है. वही चीज हो सकता है वो सेकेंड पर्सन भी कर रहा है, बट उसके लिए वो सही है, बट दूसरा वो काम कर रहा है तो वो अनफेयर है. ठीक है. तो ये सब कब होता है, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है. नेक्स्ट, ईच साइड ट्राई टू इंक्रीज इट्स ओन पावर एंड लेजिटमेसी. एज अ कंसिक्वेंस द कॉन्फ्लिक्ट डेट एक्सीलरेटेड, शिफ्टिंग फ्रॉम फ्यू स्पेसिफिक इशू टू मच लार्जर इशू. छोटे इश्यूज तो होते ही हैं, और आप ज्यादा पावर अपनी शो करने के चक्कर में वो डिफरेंसेस और बढ़ जाते हैं. तो हर एक साइड जो है, दे ट्राई टू इंक्रीज इट्स ओन पावर. ओके, ट्राई टू इंक्रीज इट्स ओन पावर. अपनी पावर दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें क्या होता है, डिफरेंसेस जो होते हैं वो कम नहीं होते, इनफैक्ट दे विल बिकम मोर लार्ज. लास्टली, once conflict starts, several other factors lead to escalation of conflict. See, एक बार कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने के लिए. जैसे कि हार्डनिंग ऑफ इन ग्रुप ओपिनियन, एक्सप्लिसिट थ्रेट डायरेक्टेड एट द आउट ग्रुप, ईच ग्रुप रिटेलिएटिंग मोर एंड मोर, एंड अदर पार्टी ऑल्सो चूजिंग टू टेक साइड लीड टू एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. तो इन ग्रुप ओपिनियन जो होता है बहुत हार्ड हो जाता है, ये भी कंसिक्वेंस है. हार्डनिंग ऑफ इन ग्रुप ओपिनियन. ठीक है. 6th पॉइंट, रिटेलिएशन की जो फीलिंग है वो और भी ज्यादा हो जाती है, तो ये भी सही नहीं है. एक्सप्लिसिट थ्रेट भी होने लगता है डायरेक्टेड एट द और ग्रुप. एक तरह से आप दूसरे ग्रुप पे थ्रेट भी देते हो, एक्सप्लिसिट थ्रेट, और रिटेलिएशन थ्रेट और रिटेलिएशन इंक्रीज हो जाता है, थ्रेट एंड रिटेलिएशन. तो ये क्या है, these are some of the consequences of intergroup conflict.
these points according to the Deutsch, which is the name of a psychologist. I hope children you understand these points. So after understanding about the consequences, one more topic and I can say that the important point related to the conflict I want to discuss with you. Most of the conflict begin in the mind of the man and then go to the field. This is a statement which I am going to explain to you. Are you able to understand this line? ज़्यादातर conflict पहले mind में arise होता है, then वो field पे जाता है. डायरेक्ट कोई भी कॉन्फ्लिक्ट फील्ड पे नहीं आ जाता. बहुत दिनों से, बहुत समय से माइंड में कुछ ना कुछ चलते 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 कंटिन्यूस थिंकिंग अबाउट दैट वन, इट गोज कम टू द माइंड फील्ड ऑन द ग्राउंड. ओके, सो एक्सप्लेनेशन ऑफ सच कॉन्फ्लिक्ट कैन बी एट दी 3 लेवल्स. तो हम लोग उन लेवल्स को भी पढ़ लें. कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली 3 लेवल्स पे देखे जाते हैं. तो हमने आज के वीडियो में ये पढ़ा व्हाट इज इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, what are the reasons of the intergroup conflict, what is the consequence of intergroup conflict. Now I am understanding that we are reading that conflict levels. So conflict levels are categorized into 3 categories. First is structural, second is structural, second is group, and third is individual. 3 levels are there. Now structural level पे क्या आता है? Structural level पे किस तरीके के conflicts होते हैं? See, in structural condition include high rate of poverty, economic and social stratification, inequality, limited political and social opportunity. ये सारी चीजें स्ट्रक्चरल लेवल पे आती हैं. पावर्टी, इकोनॉमिक, मतलब अगर पावर्टी को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या इकोनॉमिक को लेके हो रहा है या इनइक्वालिटी की बात हो रही है या पॉलिटिकल या सोशल अपॉर्चुनिटी, कई लोगों को सोशल अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, कई को नहीं. इन सारे टॉपिक्स को लेकर अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो दैट कम अंडर दी स्ट्रक्चरल लेवल. नाउ व्हाट कम अंडर द ग्रुप लेवल. ग्रुप में क्या आता है? ग्रुप लेवल में आपके आते हैं सोशल आइडेंटिटी, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप ओवर रिसोर्सेस एंड अनइक्वल पावर रिलेशन बिटवीन ग्रुप. ग्रुप में आता है, ग्रुप में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो उसके टॉपिक होते हैं रिसोर्सेस. रिसोर्सेस को लेकर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या इनइक्वालिटी को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अनइक्वल पावर की बात हो रही है, तो दैट कम ऑन द ग्रुप लेवल. इंडिविजुअल लेवल पे क्या आता है? बिलीफ, बाइस्ड एटीट्यूड, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आर इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स. सो बिलीफ है, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या बाइस्ड एटीट्यूड हैं, ये सारे किस पे आते हैं? इंडिविजुअल लेवल पे आते हैं. You get to know that there are 3 levels of the conflict: structural, group और individual. Structural पे हम किस चीजों की बात करें, जैसे कि इंडिविजुअल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट जैसे बिलीफ को लेके हो सकता है, बायस परसेप्शन को लेके हो सकता है और पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके हो सकता है. ग्रुप में रिसोर्सेज से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या पावर से रिलेटेड, अनइक्वल पावर से रिलेटेड हो रहा है. स्ट्रक्चरल में आपका आ जाता है जैसे कि स्ट्रक्चरल में पावर्टी है, इकोनॉमिक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को लेके हो रहा है और सोशल अपॉर्चुनिटी को लेके हो रहा है. तो दीज ऑल कम अंडर द structural level of conflict. So children, we have discussed all the 3 levels, the consequences and the reason of intergroup conflict. Now we have to discuss about how we resolve it, means how we solve this. हमने problem तो पढ़ ली पर problem को solve भी तो करेंगे ना. So this I will discuss with you in the coming video, in the next video, that how we will solve and what are the conflict resolution strategies. So we will discuss it in detail. So this is for all today video. I hope you understand it.
and keep revising, children. Only revision can make you good and perfect. Thank you so much for continuously listening and observing this video. Thank you, children.